Hello students. So today's topic is force between two parallel current conductors. Okay. So in this case we will be considering two conductors. The conductors are stretched to infinite length. Okay. And both the conductors are carrying current in a particular direction. Okay. So now before going into the detail of the topic, we all are aware of two things. Right. So the first is that a current carrying conductor produces magnetic field. ठीक है. सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है दे आर लाइक ट्विन सिस्टर्स. तो जहाँ पे भी करंट है वहाँ पे मैग्नेटिज्म होगा ही होगा. तो अगर मैं एक कंडक्टर को कंसिडर करूँ, सपोज दिस इज़ कंडक्टर 1 एंड दिस इज़ कंडक्टर 2. तो अगर मैं कंडक्टर 1 को कंसिडर करूँ तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी. राइट. और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? स्पाइरल इन शेप. राइट. whose direction can be given with right hand thumb rule. तो अगर हम यहाँ पे right hand thumb rule अप्लाई करते हैं तो ये आपका करंट का डायरेक्शन है एंड द मैग्नेटिक फील्ड दे आर कमिंग आउटवर्ड एंड देन गोइंग इनवर्ड. तो इस साइड से ये बाहर आ रही है और इस साइड से ये अंदर जा रही है. राइट. सो first is that the current carrying conductor produces magnetic field. Right. Now the second thing is when we place another conductor it experiences force. Right. Now when another conductor is placed besides this conductor, then this conductor will experience the force and that force will be due to the magnetic field created by this conductor. ठीक है. So both these concepts will be used in today's topic. So you should be aware of these two things, that the current carrying conductor produces magnetic field and when we place any other conductor in near that current carrying conductor, then that conductor will experience the force. Now we have two conductors which are carrying current I. Suppose this one is carrying current I1 and this conductor is carrying current I2 and both of them are separated by distance d. Right. Now due to conductor 1 the magnetic field will be produced and what will be the direction of magnetic field? Out from here, in from here. ठीक है. तो अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूँ, सपोज B1, और इस पॉइंट पे मैं बोलूँ कि कंडक्टर 1 की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी. तो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेच करती हूँ आगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पॉइंट B1 पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करनी है. ठीक है. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम हेयर एंड एंटरिंग हेयर. राइट. सो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन. Everywhere near this point the magnetic field will be in inward direction. Right. Now when I apply Fleming's left hand rule, the magnetic field, this implies magnetic field, this implies current and this implies force. Now when the magnetic field is in inward direction and the current is in upward direction, then the force is in this direction. Right. So the force experienced by this conductor, second conductor, will be in this direction. So this will be force on second due to 1. Right. Okay. So continuing with the derivation, suppose B1 it is the magnetic field at this point due to conductor 1. So B1 made by, or we can say magnetic field made by conductor 1 at conductor 2. How this is given by B1 is equals to mu naught upon 4 pi into 2I1 upon d. This is by Ampere circuital law which we have studied earlier. Right.
from here we can say that the magnetic field at this point, the strength of the magnetic field at this point will be B1 is equals to mu naught upon 4 pi into 2 I1 upon D. D is the distance between the two conductors, I1 is the current flowing in the first conductor, and mu naught upon 4 pi is constant. ठीक है, so this will be the magnetic field on this point due to conductor 1. Right, now the magnetic field is produced, first point satisfied that the current carrying conductor produces the magnetic field. तो ये जो फर्स्ट कंडक्टर है करंट कैरी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन वी प्लेस अनदर कंडक्टर इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स. तो अगर मैं इस सेकंड कंडक्टर को लूँ तो ये सेकंड कंडक्टर इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है, तो वो फोर्स कितना होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1. ठीक है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 2 ड्यू टू 1 इज गिवन बाय BIL sin theta. Right, we have studied this. ठीक है, sin theta, what is sin theta? Theta is the angle between the magnetic field and current. और अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट आपका अपवर्ड है. तो मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है वो कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. तो है साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन 90 विच विल बी इक्वल्स टू 1. राइट, सो F21 कितना हो जाएगा हमारे पास, BIL. लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन. राइट, अब ये जो B है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1. ये जो I है, ये I क्या है, करंट कैरिड इन कंडक्टर 2. ठीक है, अब F21 कितना हो जाएगा, B1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ हमने निकाल रखी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 L अपॉन D. राइट, सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1. ठीक है, अब यहाँ पे हमें लेंथ नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया था कि दोनों कंडक्टर्स की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है. ठीक है, तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, F21 अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 अपॉन D. ठीक है, मीन्स दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो जैसे अभी जो भी फोर्स निकल के आएगा वो पर यूनिट लेंथ है. तो सपोज़ अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे इस कंडक्टर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे पता करना है कि फोर्स कितना होगा, तो आई विल कैलकुलेट दिस और मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी. क्यों, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये पर यूनिट लेंथ है 1 मीटर के डिस्टेंस पे, 1 मीटर के लेंथ के कंडक्टर की वजह से. ठीक है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारा ये L जो है चेंज होता चला जाएगा. बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ फॉर 1 मीटर. राइट, नाउ सिमिलरली व्हेन करंट इज कैरीड इन कंडक्टर 2 देन फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय 1 ऑल्सो. ठीक है, जिस तरह सेकंड पे फर्स्ट की वजह से फोर्स लगा उसी तरह फर्स्ट पे भी सेकंड की वजह से फोर्स लगेगा. अब ये जो सेकंड है ये करंट कैरी कर रहा है अपवर्ड, मीन्स इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरह से स्पायरल शेप में होगा. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ मुझे इस B2 पॉइंट पे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B2 मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा. ना अगर मैं इसमें देखूँ, अगेन आई विल अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल. तो मैं देखूँगी यहाँ से लाइक दिस, thumb pointing towards the current and fingers pointing towards the magnetic field. Now when I curl the fingers, I will see इस point पे fingers are coming upward और इधर वाले पॉइंट पे फिंगर्स आर गोइंग डाउनवर्ड. राइट, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो B2 पे मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कैसी मिलेगी, अपवर्ड मिलेगी. ठीक है, नाउ अगेन मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड. सी, मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड एंड द करंट इज लाइक दिस. राइट, तो हमारा फोर्स क्या होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, सो द फोर्स ऑन 1 due to 2 will be in this direction. ठीक है, अब दोनों में सो F सिमिलरली हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे. सो वील गेट F12 अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
into 2I1 I2 upon d, which implies that the magnitude of the force will be equal. तो क्या हम कह सकते हैं कि F21 इज इक्वल्स टू F12? अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर किया है. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें इसके डायरेक्शन को भी लेना पड़ेगा. ठीक है. सो व्हेन वी विल टेक इट्स डायरेक्शन, तो हम देखते हैं यहाँ पे F12 और F21, they both are in opposite directions. So direction is opposite but magnitude is same. So we can say that F21 is equals to minus of F12, right, which will be equals to mu naught upon 4 pi into 2I1 I2 upon d, where d is the distance between the two conductors, I1 is the current flowing through conductor 1, I2 is the current flowing through conductor 2, and mu naught upon 4 pi is a constant term, right? So here we can generalize one thing. What is that thing? That if in both the conductors current is flowing in same direction, then both the conductors will experience the attractive force, right? They'll experience the attractive force. So this is the conclusion we can draw from here, that if current flowing through both the conductors are in same direction, then the conductors will experience attractive force, right? Now what will happen if the current is flowing in opposite direction? So let's see that. Now here the current is flowing in opposite direction, same is the case is same, both the conductors are separated by distance d and both are of infinite length. Okay, so now the currents are flowing in opposite direction. Now let's see what will happen to the force between the two conductors. First one, I1 is in upward direction. We'll apply the right hand thumb rule and we'll see from here the fields will come out and from here the fields will go inside. So at B1 the field will be in inside, right? Now B2 कैसा होगा, outside या inside? Let's calculate. Again we'll be using right hand thumb rule. This is the direction of thumb in the direction of current. The fingers here they are going inward and from here they are coming upward, right? So the magnetic field at B2 will be inward. ठीक है. अब so now from Fleming's left hand rule we can find out the direction of magnetic field. Here the current is in upward direction, magnetic field is in downward direction, so force will be in this direction, right? Similarly here if we'll find out the magnetic field is in downward direction, current is like this in this that direction, the force is here. ठीक है. तो इस so in this case the force is in this direction, force F21, and in this case the force is in this direction. So both the forces are in opposite direction, so they'll experience the repulsive force. Okay, so when both the currents are in opposite direction, the force experienced by the conductors is repulsive, and when both the forces are in same direction, the force experienced by the conductors are attractive. I hope the concept is clear. Now from here we can derive the definition for 1 ampere. If you remember, you have studied the definition of 1 ampere in class 11th chapter number 2. ठीक है. There the standard definitions were given for each fundamental units and there the definition of 1 ampere was also given. That definition was derived from this formula. ठीक है. कैसे डिराइव किया, हमें क्या मिला, F अपॉन L, F12 या F21 हम कोई भी ले सकते हैं बिकॉज मैग्नीट्यूड इज सेम. हमें मिला F अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन
D. This is the force experienced by one conductor due to the current flowing in the second conductor. ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम माने I1 I2 इक्वल हैं और वो दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के 1 एम्पियर. ठीक है, 1 एम्पियर इज़ अ बिग यूनिट, कोई बहुत छोटा अमाउंट नहीं होता है. 1 एम्पियर जो होता है वो अच्छा खासा करंट होता है. ठीक है, और एंड D इज़ 1 मीटर. ठीक है, तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करते हैं तो F/L कितना हो जाएगा, μ0/4π इंटू 2 इंटू 1/1. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये क्या मिल जाएगा, μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7 इंटू 2. तो फोर्स कितना मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 फोर्स पर यूनिट लेंथ. हमें कितना मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7. मीन्स जब 1 एम्पियर का करंट कंडक्टर्स में से फ्लो होगा और अगर कंडक्टर्स आपस में 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं तो हमारा फोर्स कितना एक्सपीरियंस होता है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर. ठीक है, सो फ्रॉम हेयर वी कैन डिराइव द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर विच स्टेट्स. So 1 ampere of the current can be defined as 1 ampere is the value of that steady current which when maintained in each of the two very long straight parallel conductors. 1 ampere current is maintained in both the conductors, that is I1 I2 is equals to 1 ampere of negligible cross section and placed 1 meter apart. D is 1 meter in vacuum would produce a force of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर. ठीक है, तो जब वो करंट 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर करंट वो करंट है जो कि हम दो कंडक्टर्स में मेंटेन करते हैं प्रोवाइडेड दैट बोथ द कंडक्टर्स आर लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. ठीक है, तो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करते हैं वो कितना होता है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर. जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जो करंट इन कंडक्टर्स में से फ्लो हो रहा है वो कितना होता है 1 एम्पियर. राइट. So from this derivation we can derive two things. First is the definition of 1 ampere of the current and second that the parallel currents attract. Parallel currents means both the currents are flowing in same direction and anti-parallel currents they repels, means both the currents are flowing in opposite direction. Right. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इन द फर्स्ट केस व्हेन द करंट वाज बोथ द करंट वाज इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है दैट बोथ द वायर्स में टच ईच अदर, क्योंकि अगर दोनों वायर्स एक दूसरे से टच हो गए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन आ जाएगी. भाई ये करंट कैसे फ्लो होगा, ये यहाँ पे ये किसी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा. ठीक है, अब बोथ आर एक्सपीरियंसिंग द अट्रैक्टिव फोर्स. मीन्स कोई कंडीशन ऐसी आ सकती है कि हमारे जो दोनों वायर्स हैं वो टच हो जाएं, क्योंकि अगर हमारे दोनों वायर्स टच हो जाएंगे सो देयर विल बी द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग. राइट. सो इज दिस कंडीशन पॉसिबल? So the answer is that this condition is not possible. Why? Because the force between the two conductors is very small. ये फोर्स इतना छोटा है कि ये 1 मीटर के डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से दोनों वायर्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन नहीं होंगे. ठीक है, तो क्या होता है, हमारे जो वायर्स होते हैं वो थोड़े इस शेप के हो जाते हैं. दिस वायर विल बी पुल्ड दिस साइड, दिस वायर विल बी पुल्ड दिस साइड. तो ये जो हमारे वायर्स होते हैं वो इस तरह से थोड़े से बेंट हो जाते हैं. ठीक है, एंड फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू वी प्लेस स्पेसर्स हेयर. स्पेसर्स क्या करते हैं, दे मेक श्योर दैट द वायर्स डज नॉट टच ईच अदर. वैसे तो ये टच करेंगे ही नहीं बिकॉज फोर्स प्रोड्यूस इज वेरी स्मॉल, बट जस्ट फॉर द सेफ्टी रीजन्स द स्पेसर्स आर प्लेस्ड बिटवीन बोथ द वायर्स सो दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. नाउ वन वेरी फेमस क्वेश्चन इज़ देयर रिलेटेड टू दिस टॉपिक. ठीक है, उसमें क्या है, आपकी सपोज एक स्प्रिंग है. ठीक है, इस टाइप से आपकी स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की जो टिप है उसको आपने मर्करी में डिप कर रखा है. ठीक है, लिक्विड मर्करी में आपने डिप कर रखा है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी. नाउ what will happen when the battery is switched on, what will happen to the
स्प्रिंग, ठीक है. ऑप्शंस आर इट विल श्रिंक, इट विल एक्सपैंड, इट विल ऑसिलेट और नन ऑफ दीज. ठीक, तो अगर हम इसमें देखें तो जब बैटरी स्विच ऑन होगी तो हमारा यहाँ से करंट फ्लो करेगा. ठीक है, जब हमारा करंट फ्लो करेगा हमारी जो स्प्रिंग है वो इस टाइप से है. ठीक है, तो अगर मैं एक टर्न की बात करूँ, ये इसको थोड़ा सा हम बिगर फॉर्म में बनाते हैं लाइक दिस. ठीक है, तो हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा, लाइक दिस. ठीक है, तो अगर मैं एक पूरे टर्न में देखूं तो एक पूरे टर्न में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, लाइक दिस. सपोज दिस इज़ द फर्स्ट टर्न, इस फर्स्ट टर्न में करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है. ठीक है, अगेन लेट्स सी द सेकंड टर्न, इसका टर्न में करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है. अगेन यहाँ पे भी एक टर्न होगा. ठीक है, थर्ड टर्न में भी करंट की डायरेक्शन सेम है. ठीक है, सो इन ऑल द टर्न्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम. नाउ व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम देन द कंडक्टर्स एक्सपीरियंस attractive force, right? Now when the conductors will experience the attractive force, what will happen? The conductors will be pulled towards each other. When the conductors will be pulled towards each other, the spring will shrink, right? So what will happen? The spring will shrink. Now is this the final answer that the spring will shrink and the thing will be over? Okay, let's see. Now when the spring will shrink, what will happen? स्प्रिंग श्रिंक हो गई. ठीक है, पहले क्या था, स्प्रिंग की जो टिप थी वो मर्करी के कांटेक्ट में थी. जब स्प्रिंग श्रिंक हुई तो ये जो टिप है ये मर्करी के कांटेक्ट से बाहर आ गई. मींस सेकंड केस में क्या हुआ, आपका कांटेक्ट ब्रेक हो गया, आपका सर्किट इनकम्प्लीट हो गया. अब जब सर्किट इनकम्प्लीट हो गया तो क्या होगा, करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा. जब करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स किसकी वजह से है, करंट की वजह से. अगर करंट ही नहीं होगा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं होगा एंड द स्प्रिंग विल रीगेन इट्स पोजीशन. स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी. ठीक है, अब जैसे ही वो वापस अपनी पोजीशन पे आई, मीन्स फर्स्ट केस पे आई, अगेन द सर्किट इज कंप्लीट एंड द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. अगेन इट विल श्रिंक. आफ्टर श्रिंकिंग circuit is broken, again it will come back to its original position, then shrink back, shrink back, shrink back. So what will happen, it will oscillate, right? shrink होगी, circuit break होगा, when it will come back to its original position circuit complete हो जाएगा. then it will shrink, then it will come back, then it will shrink, then it will come, so it will oscillate, it will keep oscillating दिस वे. ठीक है, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड्स में आ सकता है. और वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम श्रिंक पे लगा जाते हैं. क्यों, क्योंकि बैटरी ऑन हुई, करंट फ्लो हुआ और हमारी जो ये स्प्रिंग है ये श्रिंक कर जाएगी. लेकिन उसके बाद क्या होगा वो हम नहीं सोच पाते. ठीक है, तो दिस इज़ द. नाउ वन मोर क्वेश्चन इज़ देयर. सपोज there are 3 wires and in each wire 2 ampere of the current is flowing, right? The direction of current is in the first 2 wire, that is in A and B, the direction is upward, and in C the direction is downward. Now both the wires are separated by the distance of 1 meter. ठीक है, so you have to find out net force on wire B. बी जो होगा वो नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ट्राई इट आउट. नाउ सी हाउ विल कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन वायर बी. सबसे पहले हम बी पे देखेंगे ए की वजह से फोर्स. ठीक है, ए और बी दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, तो बोथ विल एक्सपीरियंस द अट्रैक्टिव फोर्स, मीन्स द वायर बी विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए. दिस इज एफ बी ए. ठीक है, नाउ when we compare B and C, in B and C the current is flowing in opposite direction, right? So means B will experience the repulsive force, means B will be pushed away from C. So force on BC, FBC. अब अगर हम FBA और FBC को देखें तो both are in same direction. ठीक है, तो नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा,
इट विल बी इक्वल्स टू FBA प्लस FBC. ठीक है. अब FBA को कैलकुलेट करना है. FBA हमारा कितना होगा? FBA विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. डायरेक्शन हमें पता चल गई. डायरेक्शन विल बी इन दिस साइड. अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं. सो इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू I1. I1 कितना है? FBA. I1 इज 2 इंटू I2 इज अगेन 2. बोथ सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 1. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन. सो दिस विल बी द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर B एंड द डायरेक्शन विल बी इन लेफ्ट साइड और वी कैन से टूवर्ड्स A. ठीक है. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं एंड आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू.